Hello, future officers. I hope all of you are doing very well. Welcome to These Coded. Today we are going to take up the UPSC CSAT PYQ of the year 2024, 23, 22, 21 and 2020. The topics to these PYQs would be speed, distance, time and work. Approximately on this combined topic every year two questions are asked and sometimes three questions have also been asked. So without wasting any time, let's start solving the question from 2024 paper. Okay. So I have taken out 2024 paper set A and the first question is your question number 7. The question goes like a certain number of men can complete a piece of work in 6x days where k is a natural number. By what percent should the number of men be increased so that the work can be completed in 5 days? Okay. So we are given that let's say certain amount of men are m and they take 6k days to complete the work, and similarly let's say there are certain another amount of men that are n and that they take 5k days to complete the work. Okay, now from the general equation, these men working for 6 days would complete 1 unit of work, and these men working for 5k days would complete 1 unit of work. So we can equate them. So man days would be m1 and number of days is 6k, and they would complete 1 unit of work. So it would be equal to man into days 5k. So both the man days are equated because they would be doing same amount of work. Okay, so k gets cancelled over here. So what we have is n is equal to 6 by 5 times of n. Getting my point? So let's see in terms of what we can write. So this could be your 6, 5, 5 in the 5, and this is your 1, 2, and 2 times. So n is equal to 1.2 times m. So I can write it down further as 1m plus 0.2m. So n is equal to m plus 20% of m. I can write it down like this also. So 20%. So the amount of men which n is 20% more than what the amount of men m is. ओके, तो जो n है वो 20% ज्यादा है m से. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C20. So 20% more men would be required to do this work. Okay, now we'll solve question number 8. Another question which was asked from this, it says that x, y and z can complete a piece of work in 6 hours, 8 hours एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब जो एक्स वाई जेड है वो इतने में कर रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे कम टाइम कौन सा ले रहा है काम को करने के लिए? एक्स ले रहा है, तो एक्स सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो गया. ठीक है. However, only 1% of the time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. Okay, and all are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time they will be able to finish the work? ठीक है, कोई इशू नहीं है. इसमें आपके पास है कि x जो है ना उस काम को कितनी देर में कर रहा है? x आवर्स में कर रहा है उसको. ठीक है, तो अगर वो पूरा का पूरा काम जो समझ लीजिए 1 यूनिट है, 1 यूनिट ऑफ वर्क वो कर रहा है 6 आवर्स में, एक्स आपका, तो आपके 1 आवर में कितने यूनिट वर्क करेगा? 1/6. सिमिलरली जो y है वो 1 आवर में कितना यूनिट वर्क करेगा? 1/8. और z भी कितना करेगा? 1/8. वो आप देखोगे कि सबसे जो एफिशिएंट आदमी है ना वो कौन है हमारा, क्योंकि 1/6 सबसे ज्यादा है इन सब में से, तो सबसे एफिशिएंट हो गया x. तो सबसे ज्यादा जल्दी जो काम को कर दे रहा है वो एक्स है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एक्स है. तो क्योंकि हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में काम करना है, सबसे ज़्यादा हम एक्स से काम कराएंगे. पर ये कह रहा है कि एक घंटे में एक ही आदमी काम कर सकता है और कॉन्जिक्यूटिव नहीं काम कर सकता. जैसे कि अगर एक्स ने काम किया पहले, बट स्टार्ट एक्स से किया अगर हमने, क्योंकि एक्स सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, एक्स से स्टार्ट करेंगे, तो अगला जो काम करेगा वो तो या तो वाई होगा या जेड होगा. ठीक है, फिर कॉन्जिक्यूटिवली नहीं काम कर सकते तो फिर से या फिर एक्स होगा, और फिर से जो अगला काम अगले घंटे करेगा वो वाई या z होगा, फिर से x करेगा, फिर यह y और ये z होगा. ठीक. तो अब इसको शुरू करके देखते हैं हम कि कैसे इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं. तो देखिए x तो करता है 1/6, तो अब अगला काम कौन करेगा? आपको 1 यूनिट कंप्लीट करनी है, तो पहले घंटे में
x ने कितना काम किया 1/6। तो अगले घंटे में y और z की जगह कोई भी ले लो क्योंकि दोनों सेम अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ काम कर रहे हैं एक घंटे में, तो ये 1/8 करेगा। अब फिर से 1/6 ले लो, 1/8 करेगा, 1/6 1/8। तो अभी तब तक लेते रहो जब तक 1 यूनिट ना बन जाए, क्योंकि ये 1/6 एक घंटे में 1/6 फिर 1/8 1/6। तो इससे देखते हैं कि हमारे पास क्या आ पाता है। इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 24, 24 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 6 और 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा। इसको आपको 24 बनाने के लिए 4 से करना पड़ेगा, तो ये 3 टाइम्स तो 4 हो जाएगा आपके पास, प्लस 3 टाइम्स ही आपके पास 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, क्योंकि ये 1 2 ये 1/6 आ रहा है 3 टाइम्स, और ये तो इसको आपको 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी। तो आपके पास आ गया 12 प्लस 9/24 इज इक्वल टू 21/24। तो हमारे पास आज कितने हो गए, एक आर में 1/6 काम हुआ, दूसरे में 1/8, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास 6 आवर्स हो चुके हैं अभी तक, और 21/24 यूनिट्स काम हुआ है। तो काम बचा कितना हुआ है अभी मेरे पास, 1 माइनस 21/24 यूनिट्स। तो आपके पास जो काम बचा है वो आपके पास हो गया ये 3/24 यूनिट्स, यानी कि 1/8 यूनिट ऑफ वर्क आपके पास बचा हुआ है। अब ये y ने किया या z में से किसने किया होगा आखिरी काम, तो अगला तो x को ही करना है। तो अब देखो कि अगला जो काम बचा है 1/8 यूनिट है और करना x को है, ठीक है। तो जो हमारे पास x है वो एक घंटे में 1/6 यूनिट काम करता है, ठीक है कि नहीं। तो एक यूनिट काम कितने में करेगा, 6 आवर्स में। तो 1/8 यूनिट काम कितने में आवर्स में कर देगा वो, 1/8 इंटू 6। तो आपके पास हो जाएगा 3, ये 4, ये आपके पास हो गया कितना 45 मिनट्स। तो बचा हुआ 1/8 यूनिट काम जो है वो x जो है हमारे पास वो कर देगा 45 मिनट्स में। तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 आवर्स हो चुके हैं, और अगला 1/8 यूनिट काम जो बचा था वो 45 मिनट्स में हुआ। तो फिर टोटल टाइम हो गया 6 आवर्स प्लस 45 मिनट्स, तो 6 आवर्स 45 मिनट्स आपका इसका आंसर आ गया, जिसका आंसर आपका सी 6 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक है। तो इस वाले ईयर में 24 में आपके पास दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम 23 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस टॉपिक से। अब हम चलेंगे 22 की तरफ। 2022 क्वेश्चन पेपर सेट ए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। ओके, द क्वेश्चन गोज लाइक x and y run a 3 kilometer race along a circular course of length 300 meter. Their speeds are in ratio 3:2. If they start running together in the same direction, how many times would the first one pass the other? The start off is not counted as passing. Okay. तो देखिए अब ये कह रहा है सर्कुलर ट्रैक है जिसमें x और y दोनों भाग रहे हैं, 3 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है, और जो रेस की लेंथ है वो है आपकी 300 मीटर, ठीक है। तो आप एक चीज को देखो कि इसमें एक चीज हो रही है आपके पास कि इनकी स्पीड 3:2 है। अब जो x है वो ज्यादा तेज भाग रहा है, तो मतलब y उसके पीछे है, ठीक है, y उसके पीछे है। तो जब x पहली बार 300 मीटर को क्रॉस कर देगा उसके बाद ही तो अगला वो चक्कर मार के उसके पास आ जाएगा ना, ठीक है। सो इनकी जो स्पीड्स को हम 3:2 में दिया, तो उसकी x की स्पीड को 3 मीटर आप 3 मान लो, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड मान लो, और y की स्पीड को मान लो आप 2 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि 3:2 के रेशो में दिया हुआ है। अब x ज्यादा तेज भागे तो पहले वो 300 मीटर कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही तो फिर से दूसरा चक्कर मारेगा ना उसको कैचअप करने के लिए, ठीक है। तो x को y के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली भागना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको y का डिस्टेंस भी जो कवर कर चुका है y, उसका भी अगला जो y आगे डिस्टेंस कवर कर चुका है वो भी कवर करना है, वो वाला उसको वापस फिर से पकड़ने के लिए। तो उसके रिलेटिव स्पीड देखनी पड़ेगी। आप x को तो आप y को स्टेशनरी मान लो और सोचो कि मतलब x फिर से घूम के आ रहा है, तो हर एक पॉइंट पे जो है वो जो y ने डिस्टेंस पहले से कवर कर लिया है वो x को फिर से कवर करना पड़ेगा, तो इनकी रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड आपके पास हो जाएगी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आपका, ठीक है। तो जो टाइम लग रहा है पहली बारी कवर करने में उसको आपको 300 मीटर को हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस है 300, तो 300 बाई 1 इज इक्वल टू 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड बाद जो है वो पहली बारी y को क्रॉस करेगा। अब टोटल हमारे पास 3 किलोमीटर भागने हैं, 3 किलोमीटर भागने हैं टोटल। तो टोटल 3 किलोमीटर भागने, रेट ऑफ स्पीड ये लिखते हैं। तो x को 300 मीटर भागने हैं, तो कितने टाइम में भाग लेगा वो? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है 1, टोटल रिलेटिव स्पीड। तो आपके पास इसकी वो सॉरी x की स्पीड है 300, तो ये कितना टाइम लेगा x जो है 3000 मीटर भागने के लिए? तो ये आ जाएगा आपका 1000 सेकेंड। अब देखिए जब उसको वो 300 मतलब वो मतलब अगर वो x उसका पीछा कर रहा है y का और कितनी देर में उसको क्रॉस कर देगा, तो पहली बार क्रॉस करेगा 300 सेकेंड में, ये बात ठीक है। पर अब x को खुद को भागना कितना बड़ा सर्कुलर ट्रैक है, अब हमें वही पता लगाना है ना कि 3 किलोमीटर के ट्रैक में कितनी बारी वो उसको छोड़ पाएगा। तो हम ये पता लगाएंगे उसके लिए कि x जो है वो 3 किलोमीटर का ट्रैक कितनी देर में पार कर सकता है। तो x की स्पीड है 3 किलोमीटर, वो 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप 3000 मीटर को डिवाइड कर दोगे 3 मीटर पर सेकेंड से। ये किलोमीटर में था, 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके पास आ गया 1000 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये कवर करता है, एक बारी जब क्रॉस करेगा तो 300 सेकंड में करेगा, तो दूसरा क्रॉस कितने बारी में करेगा? 600 सेकंड में, फिर अगला करेगा 900 सेकंड में, उसके बाद तो फिर 100 बचे कितने? सिर्फ 100 सेकंड बचेंगे, वो अगला कर नहीं पाएगा। तो 3 बारी क्रॉस कर पाएगा टोटल इस रेस में, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये पूछना था हाउ मेनी टाइम्स वुड फर्स्ट पास द अदर, कि एक्स जो है वाई को कितनी बार क्रॉस करेगा? वो 3 बार कर लेगा, क्योंकि 1000 सेकंड के अंदर वो 3 बार ही कर सकता है, क्योंकि हर 300 सेकंड बाद कर रहा है। तो 300 में करेगा एक बारी, फिर 600 में, फिर 900 में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 37। ओके, the question goes like, consider the question and the two statements given below in respect of the three cities P, Q and R. How far is the city P from Q? ठीक है, P से कितना दूर है Q पता लगाना है। स्टेटमेंट 1 दी हुई है, सिटी Q इज 18 किलोमीटर फ्रॉम R। ठीक है, Q और R के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 18 किलोमीटर। एंड P एंड R, P और जो R है, अब जो ये P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है कहीं। तो जो ऐसे अगर कहीं भी देखोगे तो ये 43 किलोमीटर है। ठीक है, अब P से Q का डिस्टेंस पता लगाना है, पर पता लगा सकते हो नहीं पता लगा सकते। अगर P यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। अगर यहाँ का होगा डिस्टेंस अलग हो जाएगा, यहाँ होगा तो अलग हो जाएगा, यहाँ होगा तो अलग हो जाएगा। तो अब एक देखते हैं क्या होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करके मेरे को ये तो पता लग रहा है कि मैं पता तो नहीं लगा सकता। स्टेटमेंट 1 alone is sufficient, no. स्टेटमेंट 2 alone is sufficient, no. both the statement 1 and 2 are sufficient, no. वो स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट, डी आंसर आ जाएगा, क्योंकि पी की पोजीशन कहीं भी हो सकती है ना, मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ है। तो क्यू से अगर अगर पी यहाँ था तो क्यू यहाँ, इतना ये वाला डिस्टेंस होता। अगर पी वहाँ है तो ये होगा डिस्टेंस, अगर पी यहाँ है तो ये होगा। हमें पता ही नहीं है उसकी पोजीशन क्या है, तो नहीं निकाल सकते हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 57। तो दोनों स्टेटमेंट का यूज करके भी मैं नहीं बता सकता उस आंसर को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 57 पे। 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days। ठीक है, मतलब 24 मैन हैं आपके पास और 12 वुमेन हैं, ये आपकी मिलकर जो है 30 डेज में एक काम को कर दे रहे हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन एंड 24 वुमेन डू द सेम वर्क? देखिए अब मैं इनका कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं बना पाऊंगा यहाँ पर कहीं भी। एक देखो आपकी, जैसे आपके पास ये तो है कि 24 मैन और 12 वुमेन 30 डेज में काम कर रहे हैं, तो 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे होंगे समझ लीजिए वो 30 डेज के अंदर। पर मुझे ये नहीं पता कि एक आदमी उस पूरे यूनिट ऑफ वर्क को कितनी देर में कर सकता है, या एक एक मैन उस जो 30 डेज में टोटल काम हो रहा है उसको कितने टाइम में कर सकता है, सिर्फ एक मैन, वो मुझे नहीं पता है। ना ही मुझे ये पता है कि एक वुमेन वो पूरे काम को कितने डेज में कर सकती है। तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि हाउ मेनी डेज 12 मैन 24 वुमेन, क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है इससे हमें ये तो बता दिया गया कि 24 आदमी और 12 वुमेन मिलकर 30 दिन में पूरे काम को कर दे रहे हैं, पर एक आदमी और एक वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं उस काम को, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ।
तो इसकी वजह से मैं इसका स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं बता सकता कुछ भी, तो ये डाटा इनसफिशिएंट है क्योंकि इफेक्टिवनेस ऑफ मैन एंड वुमेन नहीं दी हुई है मेरे पास। तो इसका आंसर डी होगा आपके पास, डाटा इज इनएक्युरेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। ओके, so with this we are done with the 2024-22 paper. Now we'll move on to 2000 and अब हम चलेंगे 2021 के पेपर के ऊपर। सेट ए निकालो 2021 पेपर का। पहला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 29। सेट ए क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, अब ये कहता है अ पर्सन एक्स फ्रॉम अ प्लेस ए एंड अदर फ्रॉम बाय फ्रॉम प्लेस बी सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टूवर्ड ईच अदर। ठीक है, ये ए था आपके पास, ये बी था, जहाँ पर दो जगह हैं। एक्स कोई आदमी है जो यहाँ से वाई की तरफ जा रहा है और वाई जा रहा है एक्स की तरफ, मतलब कि एक्स जा रहा है बी की तरफ, वाई जा रहा है ए की तरफ। ठीक है, द प्लेसेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 15 किलोमीटर का। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स वॉक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक्स चल रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर के लिए की स्पीड से। Y walks with a uniform speed of 1 kilometer per hour in the first hour, okay, with a uniform speed of 1.25 in the second hour, and with a uniform speed of 1.5 in the third hour and so on. मतलब हर घंटे के बाद 0.25 स्पीड बढ़ती जा रही है y की, और x की कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? दे टेक 5 आवर्स टू मीट। अभी मुझे नहीं पता है 5 आवर में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब एक काम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि जो x है ना, जो हमारे पास x है, वो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। क्योंकि आपके पास स्पीड है उसकी 1.5, डिस्टेंस पता नहीं है आपको कितना है, टाइम पता है 5 आवर्स है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो 1.5 इंटू 5, जो कि होगा आपका 7.5 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो x जो है 5 घंटे में 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अभी फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि 5 घंटे के अंदर y कितना कर लेता है। देखते हैं। देखो, यूनिफॉर्म स्पीड y की पहले घंटे में 1 है। 1, देखो, अगर जब पहला आर आप देखोगे y का, तो उसमें इसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आर है और टाइम भी 1 आर है, तो डिस्टेंस कितना हो गया 1 किलोमीटर। दूसरे में स्पीड कितनी है 1.25 और आर है 1, तो डिस्टेंस हो गया इज इक्वल टू 1.25 सेकेंड में। ये सेकेंड आर है, ये फर्स्ट आर था। अब थर्ड आर में सिमिलरली 1.5 डिस्टेंस करेगा। फोर्थ आर में कर लेगा आपका 1.75 और फिफ्थ आर में कर लेगा 2, क्योंकि 0.25 से बढ़ रहा है। अब इन सभी डिस्टेंसेस को ऐड कर लीजिए। जो डी वाई मान लो इसको कि 5 आर में डी टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 प्लस 1.25 प्लस 1.5 प्लस 1.75 प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये तो 3 बन जाएगा यहाँ पर, 3 और 2 5 और 6, और ये हो जाएगा आपका 7, तो 7.5, ये आपका कितना बन गया था 3। इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 बन जाएगा। 3 प्लस 2 5 और 1 6, और ये 1.5 बचा, तो आ गया 7 प्लस 1 वो 6 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर। तो 5 आवर में ये भी 7.5 कर रहा है और ये भी 7.5, तो 7.5 का हम 15 का आधा होगा, तो ये मिड पॉइंट, मतलब 5 घंटे बाद ये दोनों यहाँ पर पहुंच जाएंगे। दोनों ये यहाँ पहुंच जाएगा एक्स, और वाई यहाँ पहुंच जाएगा। तो 5 घंटे बाद वो मिडवे पे पहुंच जाएंगे दोनों, तो दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी। ये भी ठीक है, तो दे टेक 5 आवर्स टू मीट, ये भी ठीक है, क्योंकि 5 आवर में ये भी 7.5 कर रहा है, 5 आवर में ये भी 7.5 कर रहा है, तो ये 5 घंटे मिल जाएंगे जरूर। और बीच में ही मिलेंगे क्योंकि 7.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल रहे हैं और वो 15 किलोमीटर का आधा ही है। तो इसका मतलब इसका आंसर है आपका सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नाउ फॉर 21 विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 80, which is a time and work question. A man completes 7 by 8 of a job in 21 days. Okay, how many more days will it take him to finish the job if the quantum of work is further increased by 50%? ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है कि ये 7 बाय 8 यूनिट ऑफ वर्क है, 21 डेज में करता है। तो 1 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में कर लेगा ये? 21 इंटू 8 बाय 7 हो जाएगा। 7 वन जा 7, 7 3 जा 21,
तो ये आपका हो जाएगा 3 × 24 डेज में। तो 1 यूनिट ऑफ वर्क ये 24 डेज में कर रहा है आपके पास। ठीक है, अब ये कहता है कि जो इसका वर्क था, समझ लीजिए पहले 1 यूनिट वर्क था इसका, अब ये बढ़ गया है 50% से, तो 1 का 50% हो जाएगा 1/2। तो अब टोटल वर्क हो गया 3/2 आपके पास। और ऑलरेडी कितना वर्क हो गया है, 7/8 ऑलरेडी हो चुका है। तो 3/2 टोटल वर्क करना है अब इसको, क्योंकि 50% इंक्रीज हो रहा है ना। इफ द क्वांटम ऑफ वर्क इंक्रीज बाय 50%, तो 1 का 50% होगा 1/2, तो ऐड हो जाएगा। 1 का 50% ये होता है ना यार आपको, 1/2। तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलिए। अब 3/2 वर्क टोटल है, हो कितना चुका है काम, 7/8 हो चुका है। तो बचा कितना वो देखो इसको, इसका एलसीएम लोगे आप 2 और 4 का, तो आपके पास 8 आ जाएगा। इसको 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5/8 यूनिट्स ऑफ वर्क बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब ये 1 यूनिट वर्क कितने दिन में करता है, 1 यूनिट ऑफ वर्क ये कर देता है आपका 24 डेज में। तो 5/8 यूनिट कितने में करेगा, 5/8 इंटू 24, तो ये आपका हो जाएगा 8 और ये 3, तो ये आपका करेगा 5 × 3 15, तो 15 डेज में करेगा बचा हुआ वर्क। सो हाउ मच मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द क्वांटम ऑफ वर्क इंक्रीज 50%, सो इसको 15 दिन और लगेंगे। तो इसका आंसर है डी। ओके, so with this we are done with the questions on speed, distance, time and work for the paper of 2021. Now we'll move on to the question paper of 2020. In this paper approximately 3 questions were asked, okay, on the topics of speed, distance and time. So set A, the first question would be 71. So first question is of 71. Okay, the first, read the first, start reading the first, come with me on the first question. A person X can complete 20% of the work in 8 days. अच्छा, X जो है 20% काम कर देता है कितनी डेज में, 8 में। तो इसका मतलब ये जो है आपका, समझ लीजिए पूरा का पूरा जो काम है, जो अगर 100% काम है, तो ये आपका कर देगा कितने टाइम में, 8/20 इंटू 100 में इज इक्वल टू 40 डेज में। तो ये 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है 40 डेज में। ठीक है, अब आगे चलो। एंड अनदर परसेंट वाई कैन कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क इन 6 डेज। तो वाई जो है वो कर देता है आपका 25% ऑफ द वर्क इन 6 डेज। तो टोटल वर्क जो है 1 यूनिट का, वो वाई कितने में कर देगा आपका, 6/25 इंटू 100, isn't it? So this would be your 25 1 4 इज इक्वल टू आपका 24 डेज में 1 यूनिट ऑफ वर्क कर देता है वाई, और 1 यूनिट ऑफ वर्क एक्स करता है 40 डेज में, और ये करता है 24 में। अब आगे चलो। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे विल इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड। अगर दोनों साथ कर रहे हैं, तो अगर 1 यूनिट ऑफ वर्क करना था मतलब 100%, अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं और 1 यूनिट ऑफ वर्क करना है, 1 यूनिट का मतलब होता है 100% वर्क, तो कितने दिन में कर देंगे पहले वो निकाल लो। 1/40 प्लस 1/24 करोगे तो उनका दोनों का 1 दिन का काम आ जाएगा, ये 1 दिन का काम आ जाएगा मिलके करने पर। तो 24 और 40 का एलसीएम आपको निकालना है। आप यहाँ पे कुछ मत करो, पहले 1/4 कॉमन लो, जो आपको हो जाएगा 1/10 प्लस 1/6। तो 10 और 6 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा, कितना आता है, 10 और 6 का आ जाएगा ये 30 आ जाएगा, निकाल लो यहाँ पर। ये आपके पास है 10, ये 6, 2, 5, 3, 3, 5, 1, 5, तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 10 30, 30 आ रहा है। अब इस 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से। इस 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 8/4 इंटू 30, दिस इज योर 4 1 4, 2 2 और 1 15। तो ठीक है, ये आ गया। तो मतलब ये टोटल काम जो करें, अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं,
अगर दोनों मिलके x प्लस वाई अगर काम कर रहे हैं तो टोटल काम ये 1 यूनिट का कर देंगे 15 डेज में, यानी कि 100% वर्क जो है ये कर देंगे आपका 15 डेज में, जो कि 1 यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, अब ये कह रहा है 40% कितने में करेंगे। अगर ये 100% कर रहे हैं आपका काम 15 डेज में, तो 1% करेंगे 15/100 में, तो 40% कितने में कर देंगे इंटू 40। तो आपका ये 0 से 0 कैंसिल, दिस इज योर 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, दिस इज योर 2 एंड 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6, तो 6 डेज में, 6 डेज के अंदर आपका 40% वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर है ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 72। ओके, the question goes like a car travels from place x to y at an average speed of v km/h and from y to x at an average speed of 2v, और x to y 3v and y to x at 4v, मतलब x to y जा रही है, y to x, x to y, y to x। तो ठीक है, तो आप समझ लीजिए एक डिस्टेंस था आपके पास यहाँ पर एक्स वाई। ठीक है, तो ये 4 बार गई है ना, एक बारी एक्स वाई गई, फिर वाई एक्स, फिर एक्स वाई, फिर वाई, 4 टाइम्स गई है। तो मुझे पता नहीं है इसकी स्पीड कितनी है, तो v दिया हुआ है, तो v को मैं 1 किलोमीटर मान लेता हूँ, और डिस्टेंस को भी मैं एक्स और वाई के बीच में 1 किलोमीटर मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे एवरेज स्पीड क्या होती है, देन द एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी पूछा था, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो पहले वाले केस के लिए जब वो v से ट्रैवल कर रहा है d को, तो t आ जाएगा आपके पास, टाइम आ जाएगा d/s, तो ये हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड वाले केस में टाइम कितना आएगा, आपके पास डिस्टेंस तो 1 ही है और स्पीड है 2v, तो v की वैल्यू 1 मानी हुई है मैंने, तो 2 आ जाएगा, तो टाइम 1/2 आएगा। 3 वाले केस में डिस्टेंस वही है, क्योंकि पहले केस में x से y गया, दूसरे केस में यहाँ पर x से y आया, अब x से फिर से आ गया, तो थर्ड केस में x से y जाएगा फिर से, तो ये स्पीड से ज़्यादा 3v से, तो डिस्टेंस तो 1 ही है और v की वैल्यू आपकी 1 है, तो ये 1/3 आ जाएगा। अब फोर्थ वाले केस में, अब ये थर्ड में x से y पे आया, तो फोर्थ में y से x पे जाएगा, तो डिस्टेंस तो ये था 1 और स्पीड थी 4v, v को 1/4, तो टोटल हमारे पास टाइम भी आ गया अब, और मेरे पास आ गया ये भी क्या कहते हैं आपका डिस्टेंस भी। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 टाइम्स गया ना 1 किलोमीटर को, तो 4 है, और टाइम है आपका टोटल 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, अब आप देखोगे तो इसका एलसीएम निकालो आप, तो 2, 4, 3 का एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ से 3, तो 12। ठीक है, आपने इसको 12 बनाने के लिए 12 प्लस 6, इसको 6 से करना पड़ेगा, इसको 4 से, और इसको 3 से। ठीक है, और ऊपर आपका 4 है यहाँ पर, इनको दोबारा से इसको ले लो आप। ठीक है, तो ये आपका पहले से 4 था ऊपर। ठीक, अब आपका एलसीएम 12 आ गया, अब इसको 12 बनाने के लिए 12 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 12, इसको 6 से करना पड़ेगा 6, इसको 4 से, और इसको 3 से, ये आ गया। तो आपका 12 चला जाएगा कहाँ ऊपर, 4 इंटू 12 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी 4 2 8, 4 1 4/25, तो 48/25 हो जाएगी, जो कि आपकी आएगी 1.92। अब आपका v कितना था, v था आपका 1, और 2v, तो 2v हो जाएगा, तो ये 1 से v से तो बड़ा है क्योंकि 1.92 है, 2v से छोटा है, तो ये v और 2v के बीच में आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा b यहाँ पे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका 74। A man takes half time in rowing a certain distance downstream and then upstream। ठीक है, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि आप, जैसे कि अगर रोइंग का मतलब है कि आप बोट चला रहे हो, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम बह रहा है, आपकी जो बोट है वो भी उसी डायरेक्शन में बह रही है, तो जो बोट की स्पीड है समझ लीजिए एक्स, अपने आप बोट की स्पीड एक्स है, और स्ट्रीम की स्पीड समझ लीजिए वाई है, तो डाउन स्ट्रीम के अंदर टोटल स्पीड हो जाती है आपकी एक्स प्लस वाई। अब सिमिलरली अपस्ट्रीम में क्या होता है कि स्ट्रीम समझ लीजिए यहाँ इस डायरेक्शन में बह रही है, तो बोट उल्टी डायरेक्शन में जाती है,
तो बोट की स्पीड अगर अपने आप खुद की x थी और स्ट्रीम की स्पीड y थी, तो और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी x माइनस वाई। ठीक है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर टू द करंट। अब ये कहता है कि दोनों में, जैसे कि अगर डाउन स्ट्रीम में गया तो टाइम अगर टी लगा था मेरे पास डाउन स्ट्रीम जाने में, तो सॉरी, अगर अपस्ट्रीम जाने में टाइम क्योंकि ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसमें अगेंस्ट काम करना पड़ेगा स्ट्रीम के, तो टाइम समझ लीजिए इसमें टी लगा था, तो डाउन स्ट्रीम में टी बाय टू लग रहा था। यहाँ कह रहा है ना, मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। ठीक है, ये आपका हो गया। यू गेटिंग? सो नाउ अब मेरे पास एक चीज है कि स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट वाले केस में जहाँ डाउन स्ट्रीम है स्पीड है एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है एल मान लीजिए, क्योंकि जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, और टाइम टी बाय टू है यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली जब ये डाउन द स्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड है एक्स माइनस टू, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा एल, और टाइम है टी। तो टी यहाँ पे आ जाता है एल अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर टी आ जाएगा आपके पास टू एल अपॉन एक्स प्लस वाई। अब दोनों टी सेम है तो इक्वेट कर दो इनको, तो आपके पास आ जाएगा टू एल अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एल अपॉन एक्स माइनस वाई। एल से एल कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो अब फर्दर आप यहाँ देख लीजिए, अब ये ऊपर चले जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ चले जाएगा, तो टू टाइम्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आपके पास। तो यहाँ पर एक्स को लाओगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स, और y को यहाँ ले जाओगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, y प्लस टू वाई। तो x इज इक्वल टू आपका थ्री वाई आता है। तो आपका x बाय y आ जाता है यहाँ पे थ्री टू वन। ठीक है। अब इसने पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द करंट। अब स्पीड ऑफ द करंट तो मैंने y माना था यहाँ पर, कि जो करंट है, जो स्ट्रीम है उसको वो चल रही है y की स्पीड से, और बोट की खुद की स्पीड है, वो जो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर है वो है x। तो x बाय y पूछा है इसने मुझे, तो x बाय y मेरे पास आता है थ्री टू वन। तो आपका आंसर है इसका डी, जो कि 3:1 है। So with this we are done with all the questions that have been asked from speed, distance, time and work in the UPSC CSAT। अगर आप जितने भी 5 साल के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं यूपीएससी में PYQs, वो भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे 5 से 6 बार, तो अगला जो पेपर 2025 में आएगा आपका 100% CSAT क्लियर हो जाएगा फिर भी। और अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए गए हैं, और उनका असाइनमेंट दिया गया आपको टेस्ट की फॉर्म में 10-10 क्वेश्चन, वो भी कराए गए हैं। तो ऑन एन एवरेज आप एक टॉपिक के ऊपर 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो। ठीक है। जब आप इतना कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता सीसैट का पेपर क्लियर करने से। अगर आपको वैसे आपका कंसेप्ट वगैरह सब क्लियर है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप सिर्फ पीवाईक्यू कर लो, 3-3 4-4 बार पीवाईक्यू क्यों, उससे कंसेप्ट दिमाग में फिक्स हो जाएगा, और आपका डेफिनेटली 2025 का पेपर भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पीवाईक्यू का सोल्यूशन चाहिए तो इसमें मैंने चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है पूरी, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्यूशंस की, आप उसको देख सकते हो। So thank you so much. I hope you like this video. If you like this video and it is helpful to you, then please suggest this to your friends that this channel is very much helpful in learning the topics of CSAT, because we are providing with concept also, practice question also, and your PYQ solution also. If you think this is beneficial, please suggest it to your other friends also. Thank you so much. Take care.